Hello students. Students, today we are going to solve our second question of dissolution. So take out that question. I am reading the question. Okay. Here we have three partners. Okay. So as you can see, I have done the ruling. Now the partners capital account will be prepared for three columns. Okay. Particulars और तीनों partner का नाम आपको वहाँ लिखना है. ठीक है. And three main accounts you have to prepare: realization, partners capital and cash bank. There is no loan, so no separate account for loan. Just do the marking. Question number 2. A firm of partners Mahesh, Suresh and Yogesh. There are three partners, Mahesh, Suresh and Yogesh. They decided to dissolve the partnership. They decided to take over certain assets and liabilities and continue the business separately. किधर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एंड एज वी नो इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू बी टेकन इक्वल. तो यहाँ पर तीन पार्टनर है तो 1/3, 1/3, 1/3. Liability side we have capital will go to partners capital, as you know. Creditors and loan, these are two external liability. If you remember students, last time partner loan था, तो partner loan रहेगा तो separate account. If there is no partners loan, तो जैसे normal liability को treat करते हैं वैसे ही करना है. It will go to realization credit. तो both creditors and loan will go to realization credit side. Furniture, sundry asset, debtors and stock will go to realization debit side. As you know, debtors का gross value जाएगा, RDD opposite side पर चला जाएगा. Same posting. Cash will go to cash bank account. We have a separate account, तो cash bank उधर चला जाएगा. One by one adjustment is given. Mahesh is to take over furniture 1600 and debtors amounting 40,000 at 34,000 only. तो यहाँ पर one of the partner is taking away asset. एक पूरा asset लेके जा रहा है वो, that is stock. Whereas okay, Mahesh is to furniture ले जा रहा है 1600 पे entire furniture, but debtors mind you students 48,400 का gross debtors है, उसमें से 40,000 के debtors he is taking for 34,000. that means remaining debtors are still there. पूरा debtors नहीं ले जा रहा है. 48,400 में से 40,000 worth का debtor he is taking for 34,000. we have to record entry at the taken over value only. तो 34,000 पे एंट्री पास करेंगे, बट अभी भी कुछ डेटर्स बाकी है, उसके बारे में आगे क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है. सो देखते हैं वो क्या है. तो पार्टनर्स अगर ले जाएगा तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. लास्ट टाइम हमने वो 8 एंट्री देखी थी. व्हाट इज द एंट्री? डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. He accepted creditor at 12,000 at that figure. जो creditors का value उसी पे उसने creditors लेके गया, मतलब one of the liability is settled by the partner. तो उसका भी वैसे ही एंट्री जो अभी हमने एंट्री पास की उसका अपोजिट हो जाएगा. नाउ क्रेडिट द गिवर, ही इज गिविंग दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी ऑफ द फर्म, ही इज पेइंग दैट लायबिलिटी. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल. सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक at 14,000 and sundry asset worth 16,000 at 14,400. यहाँ पर one of the partner is taking away asset, again same entry. क्या एंट्री हो जाएगी आपकी? Okay, partner is taking debit the receiver. So partners capital account debit to realization, या सुरेश capital to realization. वापस से sundry asset 34,000 का है, पूरा sundry asset नहीं ले जा रहा है, 16,000 का sundry asset he is taking for 14,000. तो बाकी का asset is still there, उसके बारे में आगे information दिया हुआ है. आगे Yogesh is to take over the remaining sundry asset. देखो now third partner is taking the balance remaining asset, okay, at 16,000 lump sum value. Partners capital to realization, Yogesh capital to realization, and assume the responsibility to discharge of the loan together with an accrued interest on loan of ₹60 which has not been recorded in the books of account. वो एक liability भी pay कर रहा है loan along with interest. और मैंने अगर आपको याद होगा उधर थियोरी में लिखा था रिकॉर्डेड प्लस अनरिकॉर्डेड दोनों का सेम एंट्री ही आता है. इफ यू रिमेंबर, तो मैंने पहले ही बोला वो 8 एंट्री अगर आपने याद कर ली तो ये सब आपको आ जाएगा, बिकॉज वो 8 एंट्री के बेस पर ही ये पूरा चल रहा है. ठीक है. सो यहाँ पर एंट्री क्या होगी? लायबिलिटी पे कर रहा है, क्रेडिट द गिवर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू योगेश कैपिटल आ जाएगा. आगे द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 540. डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोला, एक्सपेंस ऑफ द फर्म पेड बाय द फर्म, इट्स रियलाइजेशन टू कैश बैंक. तो ये स्टैंडर्ड एंट्री जब तक आपको आएगी नहीं, आपको पोस्टिंग नहीं आएगा स्टूडेंट्स, इसलिए वो 8 एंट्री आप उसको अच्छी तरह याद करो. यू हैव टू जस्ट अप्लाई दैट 8 एंट्रीज. रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज फॉर 4,200. ओके, डेटर्स रियलाइज मतलब मैंने बोला था ना ऊपर कुछ डेटर्स वो लेके जा रहा है, तो बाकी के डेटर्स मार्केट में सोल्ड आउट मतलब रियलाइज कर दिया, पैसा ले लिया उनसे फर्म ने. तो एंट्री क्या हो जाएगी? फर्म इज गेटिंग मनी.
फर्स्ट एंट्री अपनी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू जो दिया है 4200 ओनली जो आया वही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. ओके, द रियलाइज्ड वैल्यू. Necessary adjustments were made by the partner to settle the account. As we know, difference between the partners capital account, difference जो भी आएगा that would be settled through cash. Okay, कुछ नहीं बोलेगा, always कम पड़ा तो कैश ले आएंगे पार्टनर और ज्यादा होगा तो ले जाएंगे. So 3 अकाउंट ही बनाना है, जो फटफट हेडिंग दे दो in the books of firm and let us start with the question. Okay, realization account, partners capital account and cash bank account. So सबसे पहले मैं बैलेंस शीट एम्प्टी करना शुरू करता हूँ. लाइबिलिटी साइड से जाते हैं. लाइबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस. सो कैपिटल दिया हुआ है सबसे पहले. सो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैपिटल हम लोग लिख ले 55, 20 एंड 14,000. 55,000 फॉर महेश, 14,000 for Suresh, sorry, 20,000 for Suresh and 14,000 for Yogesh. 14,000 for Yogesh. I repeat, 55,000 for Mahesh, 20,000 for Suresh and 14,000 for योगेश. ओपनिंग कैपिटल, लाइबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, उधर ट्रांसफर हो जाएगा. बोथ द एक्सटर्नल लाइबिलिटी विल गो टू रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड स्टूडेंट्स बाय सन्ड्री लाइबिलिटी. अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एग्जाम में सब फुल फॉर्म. नाउ यू हैव टू लाइबिलिटी. लास्ट टाइम एक ही था तो बाहर लिखा था, अब दो दिया है तो इनर कॉलम में लिखकर टोटल करके यू विल ट्रांसफर इन द आउटर कॉलम. क्रेडिटर्स एंड लोन्स आर गिवन 12,000 and 3,000. Total is 15,000. 12,000 and 3,000. Total is 15,000. Liability side is done. Asset side one by one. Okay. To sundry assets. कौन से asset दिए students? Furniture, sundry asset itself, डेटाज एंड स्टॉक. कितना दिया है? फर्नीचर 2,000, दिस इज 34. डेटाज यू विल राइट द ग्रॉस वैल्यू स्टूडेंट्स 48,400. आरडीडी अपोजिट साइड पर आ जाएगा. आरडीडी 2,400 and stock worth 15,600. Cash will go to cash bank account. Asset have a debit balance. Debit side पर आ जाएगा. To balance brought down is 6,400. अच्छा, वो asset side का खाली टोटल कर दीजिए स्टूडेंट्स, कितना आता है टोटल देख लो. You have 2,000, 34,000, 48,400 and 15,600. बराबर 1 लाख रुपए आते स्टूडेंट्स. 1 लाख रुपीज. You get 1 lakh rupees. So balance sheet खाली हो गया. That means step number 1 is done. Balance sheet is empty. Step number 1 is done. Now one by one adjustment. तीनों पार्टनर कुछ कुछ लेके जा रहे हैं. तीनों की एक ही कॉमन एंट्री आती है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं वो एंट्री पास कर लेता हूँ. डेबिट द रिसीवर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय पार्टनर्स कैपिटल. वी हैव महेश, वी हैव सुरेश एंड वी हैव योगेश. Okay, Mahesh, Suresh and Yogesh. Mahesh is taking over furniture for 1,600. Okay, मैं इधर ब्रैकेट में ही लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स. Okay, क्या क्या लेके जा रहा है वो, you can write like this. Okay, Mahesh is taking over furniture plus he is also taking what students, और क्या लेके जा रहा है? Debtors
फर्नीचर प्लस डेटर्स, उधर जो वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स आपको दोनों क्लब करके साथ में ही लिख लो आप, ओके 1600 और 34,000, 40,000 का डेटर इज टेकिंग फॉर 34,000, वी हैव टू टेक द एग्रीड वैल्यू ओनली। हाँ स्टूडेंट्स, कितने का था उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो फिलहाल वो असेट्स का हम लोग टोटल कर ले। सो 34,000 एंड 1600 दैट इज 35,600, सो 35,600 टोटलिटी में दैट assets are taken over by Mahesh. Suresh is to take over all stock for 14,000, okay, तो stock और sundry asset, stock plus sundry asset, Suresh is taking away stock and sundry asset, stock कितना है 14,000 और sundry asset worth 16,000 at 14,400, तो वापस से जितना agreed value वही लेना है। So 14,000 plus 14,400 that is 28,400. 14,000 plus 14,400 28,400. Yogesh is to take the remaining sundry assets at 16,000. The remaining sundry asset is taken over by Yogesh, okay, at 16,000. So you can total this out. So it's 35,600 plus 28,400 plus 16,000. Total 80,000 आ रहा है स्टूडेंट्स एग्जैक्टली। और ये रिस्पेक्टिव अमाउंट्स उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में आएगा, तो ही इज टेकिंग 35,600 का, ही इज टेकिंग फॉर 28,400 एंड ही इज टेकिंग फॉर 16,000, 16,000 16,000, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल में जाकर आप लिख लोगे, तो यहाँ पर हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया था सेकंड इफेक्ट। अब लायबिलिटी की बात करते तो लायबिलिटी में रिवर्स एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब किसने क्या क्या पे किया, महेश इज पेइंग क्रेडिटर्स, सो महेश इज पेइंग क्रेडिटर्स, जितना उसका वैल्यू था उतना ही 12,000 में। सुरेश कोई लायबिलिटी पे नहीं कर रहा है, योगेश पे कर रहा है, योगेश इज पेइंग लोन प्लस इंटरेस्ट, योगेश इज पेइंग लोन प्लस इंटरेस्ट। उधर देखो क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट नंबर 3 में, and taking the responsibility to discharge the loan together with an accrued interest on loan of 60 which has not been recorded। तो लोन है 3,000 की और 60 इंटरेस्ट है, सो टोटल हो जाएगा 3,060, सो टोटल इज 15,060। वापस इनका सेकेंड इफेक्ट उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में, सो बाय रियलाइजेशन सुरेश कुछ नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, योगेश इज पेइंग लोन विद इंटरेस्ट, ओनली महेश एंड योगेश आर पेइंग, तो महेश एंड योगेश के कॉलम में सेकंड इफेक्ट हो जाएगा। एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्लीज 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 बाय हार्ट दैट 8 एंट्रीज, चैप्टर विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। 8 एंट्रीज जब तक याद नहीं होगी तो ये डिफिकल्ट लगेगा, प्लीज उसको याद कर लो, फिर ही ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्लियर। उसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए गए, दैट इज पेड बाय द फर्म, तो इट इज रियलाइजेशन टू कैश बैंक, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना दिया है स्टूडेंट्स 540 बाय रियलाइजेशन 540 एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स द डेटर्स वर रियलाइज, बाकी कुछ डेटर्स बच गए थे ना, थोड़े इसने लेके गया, बाकी के बच गए, ठीक है। सो उसकी एंट्री क्या है, पैसा आ रहा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय कैश बैंक, ब्रैकेट में डेटर्स के थ्रू जो पैसा आया दैट इज 4,200 ओनली, एक की वैल्यू है तो सीधा आउटर कॉलम 4,200। एनीथिंग एल्स, कुछ बाकी स्टूडेंट्स हो गया, ऑल दी एडजस्टमेंट्स आर डन, ओके, जस्ट चेक इट आउट, ऑल दी एसेट्स आर गिवन देयर, आर सेटल्ड, फर्नीचर हो गया, सन्ड्री एसेट वो आधा आधा दोनों लेके गए, डेटर्स ज़्यादा पार्टनर लेके गया महेश, बाकी का सोल्ड हो गया, स्टॉक टेकन ओवर हो गया, लाइबिलिटी पे हो गई, सब कुछ हो गया, इसमें कोई पार्टनर्स लोन नहीं है, तो दैट्स इट,
क्लोज कर दे, और क्लोजिंग सेरेमनी, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट पहले जैसे बनाया वैसे ही क्लोज करेंगे. ओके, विच साइड इज हैवी? आई थिंक सो डेबिट साइड मुझे ज़्यादा दिख रहा है. सो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं 1 लाख प्लस 15,060 प्लस 540. 1,15,600 is the heavy total. Debit side heavy, again the expenses are more, it's a loss. 1,15,600. 1,15,600. Debit side heavy है, मतलब वापस से expenses are more, it's a loss on realization, which will be distributed between the partner Mahesh, Suresh and Yogesh equally. तीन पार्टनर है, equally मतलब 1/3 1/3 1/3. So let's find out the difference students. कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस कर दो तो टोटल करो क्रेडिट साइड का 15,000, 2,400, 80,000 और 4,200 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स. सो विल फाइंड द डिफरेंस. ओके, उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर ले कितना आता है. लेट्स एक बार टोटल चेक कर ले स्टूडेंट्स. ओके, लेट अस टोटल इट आउट. कितना आ रहा है डिफरेंस? $15,000 है, 2,400